You're from Bihar, Sushant was from Bihar. You made it big, Sushant struggled. He made a place for himself. You've spoken about how your struggles are similar. But the expectation would have been that you would have been the first to come out and really be speaking as loudly, if not more loudly, than Kangana has. Arnab, मैं सिर्फ फिल्मों में हूँ. As I said, मैं politics में भी रहा. I've been away from here, from the scene. यहाँ दिल्ली, बिहार, पटना. तो I've been touring, I've been moving around. So मुझे उतनी ज़्यादा जानकारी विषय की नहीं रही है. और विषय की जानकारी अगर मुझे नहीं रही है, तो मेरा हक बनता है, फर्ज बनता है कि विषय की गहराई पे ना जाऊं, उसकी सीमा में ही रहूं. और इसीलिए मैं शुरू में नहीं आया. तो लेकिन जब हमसे लोगों ने पूछा, तो जितना मैं जानता था जानकारी के आधार पे, या मैं जितना मानता था अपने सुशांत सिंह राजपूत को, या जितनी कदर करता था मैं अपनी और करता हूं उनके फैमिली की, उस आधार पे बात की. Okay. वो भी अपने घर का छोटा बेटा. First thing, how do you know it's a suicide? I mean, there's no suicide note. That's a version which has been given out and fed to the media. It's a version which is being given out. See, even you believe it's a suicide. There's no, you can't prove it to the T that it's suicide. So first, I wanted to clarify on that. Second point I want to mention to you, Shotgun, is that, you see, a certain production house, I'm told YRF, with whom he had a 3-film deal, ended the contract after 2 films and sidelined him. Why should you not speak up against YRF and say that, to end a fantastic talent's 3-film deal and sideline him as is being alleged is wrong? देखिए, मैं हमेशा इनजस्टिस के खिलाफ बोलता रहा हूं. हमेशा इनजस्टिस के खिलाफ बोला है मैंने, चाहे रियल लाइफ में हो कि रियल लाइफ में हो. यहाँ पे जब मुझसे पूछा गया, जब बात की है, यू आर टॉकिंग टू मी नाउ एंड आई एम आंसरिंग इट. मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैं सर्टेनली इनजस्टिस जो हुआ है, पहली बात तो सुसाइड पे बोल दूं, मुझे नहीं पता, बिकॉज मैं विषय की गहराई पे नहीं गया. मुझे वही पता है जो मुझे बताया गया है, तो मीडिया के जरिए या उनके कुछ रिश्तेदारों के जरिए हमारे कुछ लोगों को बताया गया है. इसीलिए मैंने बाद में कहा था, any further inquiry or investigation. But there is a, sorry to interrupt. You see, Shotgun, you have said that only God knows what prompted a handsome, young, talented superstar like Sushant Singh Rajput to take his life. But why are we unnecessarily dragging the issue? Suddenly everyone is Sushant's friend offering 2 bits on him. My question is, people are rushing to call it a suicide. How can the case be closed when questions remain on whether all the CCTVs in Sushant's complex were shut on the night before his death? The duplicate key of Sushant Singh Rajput's house was allegedly missing. There is no trace of Sushant's handprint on the green cloth in which Sushant had hanged. His handprint is not there on the cloth with which he hanged. Did somebody else put it around him? See, why are we in a rush to call it a suicide? So I hold myself, okay, you are not saying, but the media said so in the beginning, if you remember. And also the family people, they said कि बात कुछ में से कुछ लोगों ने कहा कि बातों को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है. जाने वाला हमारा लाडला चला गया, अब वो इस दुनिया में नहीं है. अब या तो वो हम लोग तो पीसेस में आ जाएंगे, लेट हिम रेस्ट इन पीस. ये उनके फैमिली के कुछ लोगों ने कहा. इसलिए मैंने कहा कि अब जो भी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए हमारे बच्चे के लिए, वो होनी चाहिए उनके परिवार की मर्जी से, उनके परिवार के कंसेंट से होनी चाहिए. आपका वर्ड था he was a scene stealer and he had a bright future. But Mr. Sinha, last year during his film Son Chidiya, when it was getting released, Sushant was pleading to his fans, saying, please watch my film. And his exact words were, if you don't watch it, then they will throw me out of Bollywood. I have no godfather. I have made you all my gods and my fathers. Watch it at least if you wish I do survive in Bollywood. Look at his words. If you don't watch it, then they will throw me out of Bollywood. Tell me, I am asking you this question today. Let me take you back to 1965 maybe, or 1970. How would you have felt if you had to, before the release of any film of yours? I watched all your films, Shotgun.
if you before your film would have had to go with folded hands saying, if you don't watch, they will throw me out of Bollywood. क्या ये evident नहीं है कि Bollywood has got broken up into two parts, people with those big connections and people who don't? If you allow me, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि so called Bollywood जो है, वहां पे दो पार्ट से तीन पार्ट हैं. एक पार्ट तो वो है जो सेकुलर है, यहाँ पे सक्सेस और फेलियर को देखता है. यानी बिहारी शत्रुघ्न सिन्हा भी चलेगा अगर कामयाब है तो, और पहाड़ी डैनी डेंजुम्बा भी चलेगा, और हमारा अपना प्यारा लाडला बंगाली मिथुन चक्रवर्ती भी चलेगा अगर सक्सेसफुल है तो. और सक्सेसफुल नहीं है तो कितनी भी अच्छी शक्ल सूरत लेकर आए वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते. और दूसरा पार्ट है बहुत ही सेकुलर इंडस्ट्री है. यहाँ पे जरा भी थी कम से कम हमारे वक्त में कुछ साल पहले तक, यानी जहां पे कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, मजहब नहीं, जात नहीं, जाति नहीं. कमल हसन डांसर, कमल हसन एक्टर मुस्लिम है कि हिंदू है किसी को उसको परवाह नहीं, न जानने की कोशिश. न कमल डांस मास्टर थे, हिंदू थे मुसलमान थे, हमें भी कई सालों तक पता नहीं चला. जब तक स्टारडम चलता है तब तक तो ग्रुप का डंडा पापा जी तुसी छा गए, पापा जी तुसी आ गए, कमाल उनकी पोप हो, तुसी पोप हो. लेकिन जब उनकी फिल्म नहीं चलती है धीरे धीरे वो लोग पीछा छोड़ देते हैं. सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी मैं देख रहा था कि ग्रुप का शिकार हुआ, जो लोगों ने बताया मुझको, और जिन लोगों ने उनके साथ ज्यादती की, वायदा खिलाफी की, प्रॉमिस किया और प्रॉमिस नहीं निभाया, वायदा निभाया, मैं समझता हूं उसके इस जिंदगी के बाद जो कुछ हुआ, मैं समझता हूं उसके लिए बहुत हद तक वो लोग जिम्मेदार हैं. वो कौन है? ये कौन है वो लोग? ये कौन है वो लोग? ये कौन है वो लोग जिनके बारे में आप भी बोल रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत भी बोल रहे हैं, मगर आप लोग नाम नहीं ले रहे? मैं आपको कह रहा हूं कि एक प्रोडक्शन हाउस है YRF, जिसके साथ सुशांत की 3 फिल्म की डील थी, 2 फिल्म के बाद उसको साइडलाइन कर दिया. क्या उनका नाम लेना भी गलत है? क्या नाम शत्रुघ्न सिन्हा भी उनका नाम नहीं ले सकते? शत्रुघ्न सिन्हा उनसे सवाल नहीं कर सकते तो कौन करेंगे? आज मुझे ताज्जुब इस बात से होती है शत्रुघ्न सिन्हा जी कि आज अजय देवगन हो, अक्षय कुमार हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, अमिताभ बच्चन हो, कोई हो, जितने बड़े बड़े नाम हैं, कोई नहीं बोल रहे इसमें. कंगना बोल रही है. इसका जवाब मुझे दीजिए. ऐसा क्यों है? क्यों ऐसा लग रहा है? ऐसा क्यों है? इसलिए ऐसा है कि कंगना का अपना एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, वो उनको बहुत नजदीक से जानती हैं, उनके बहुत सारे लोगों के खेल तमाशे देख चुकी हैं और कई बार उसको झेल चुकी है वो. इसलिए मैं उतना नजदीक नहीं रहा. हम लोग काफी सीनियर लोग हैं, हमें पूरी जैसे विषय की, टॉपिक की, सब्जेक्ट की गहराई की जानकारी नहीं है हम लोगों को. तो अननेसेसरी जब तक, या तो आप लोग बताइए, आप लोग बताएं और पता चलेगा कि हाँ जिन लोगों ने किया है, चाहे इन लोगों ने किया है, तो हम जरूर आवाज बुलंद करेंगे. लेकिन अभी तो संभावनाएं हैं, अभी तो इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है, बात कंप्लीट नहीं हुई है. कंप्लीट होगी तो आप जानते हैं ना मैं डरता हूं ना डरने वाला. शत्रुघ्न सिन्हा जी, आज रिपोर्ट ये भी आया है कि आदित्य चोपड़ा के स्टेटमेंट और संजय लीला बंसाली के जो स्टेटमेंट है पुलिस के सामने बिल्कुल अलग है. और ये भी रिपोर्ट आ रही है कि सब लोगों की कोशिश ये है कि सुशांत सिंह राजपूत पे जो भी है, सुशांत सिंह राजपूत के मेंटल स्टेट पे डाल दीजिए इसको. दोषी सुशांत सिंह राजपूत है. आज ये सही नहीं है. मुझे नहीं लगता ये सही है. सब कुछ सुशांत सिंह पर धकेल देना, ये तो हमें पता ही नहीं कि सुसाइड है कि नहीं, मगर लाइक दे से अंग्रेजी में कहते हैं डेड मैन डज नॉट स्पीक. जो हमारे साथ है ही नहीं वो तो अपनी तरफदारी नहीं रख सकते ना, अपनी बात सामने नहीं रख सकते. क्या ये नाइंसाफी नहीं है कि सुशांत पर सारी ब्लेम दे दें और इंटरनल जो बॉलीवुड जिसको आप कहते हैं उसको सोचना चाहिए कि क्या इधर कल्चर ऐसा बन चुका है. एक बात आपको कहता हूं मैं, और ये सवाल कई बार आ चुका था. एक मिनट में इंटरवीन करना चाह रहा हूं. बोलिए प्लीज. मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो आप नाइंसाफी है, यकीनन नाइंसाफी है, लेकिन इसके लिए जो पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, चाहे जो भी एजेंसी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनको खड़े होकर बोलना होगा कि ये नाइंसाफी हुई और किन किन लोगों ने की है. जब उन लोगों ने एविडेंस, वो लोग जब एविडेंस के साथ बात करेंगे कि हाँ इसने किया, इन्होंने किया है, तो आप और हम और जोर से बोल सकेंगे. Why should there not be a CBI inquiry? CBI inquiry will be better. बेटर तो होगा, ये तो मानेंगे आप, बेटर तो होगा ना. यस मैंने कहा होली का नहीं है कि बेटर है, जरूर है, बेटर है उसमें. लेकिन ये भी देखिए, खासकर जैसे तमिलनाडु में हुआ, बाप बेटे की डेथ जो टॉर्चर से हुई,
आपके लॉकअप में, यूपी में जो हुआ, जिस तरह से हुआ, जिसके साथ हुआ, उसके बारे में उसका कोई सहानुभूति नहीं है। जिस तरह से हुआ, ये काम न्यायालय का था, कोर्ट्स का था कि कैसे क्या करना था, अचानक उसको ठोक दिया गया। उसी तरह से मुंबई में ऐसे बहुत सारे कांड होते, तो आप ठीक कह रहे हैं, आई टेंड टू एग्री विथ यू कि पुलिस का नहीं है तो फिर बेहतर एजेंसी को दिया जाए। अगर लोगों का अगर टैली नहीं कर रहा, दो आदमी का आपने कहा कि वो कुछ और कह रहे हैं और वो कुछ और कह रहे हैं, सुशांत, और लोग सुशांत सिंह राजपूत पे अगर दोष मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तब तो मैं समझता हूं, जैसा कंगना ने भी कहा, लड़की बहुत अच्छी लड़की है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत सेल्फ मेड है, मैं उसकी बहुत कदर करता हूं। और आपने कहा तो मैं समझता हूं कि ये सीबीआई के लिए केस बनता है, उसको मैं भी रिकमेंड करता हूं, दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए सीबीआई को केस देना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात आपने कही। आज मुझे लगता है कि कंगना के मेरे इंटरव्यू के बाद एक लॉबी उसके पीछे पड़ गई है। वेयर डू यू स्टैंड ऑन दैट? इट्स बिकम कंगना वर्सेस ऑल। इज दैट फेयर? वेयर डू यू स्टैंड? डू यू सपोर्ट हर? ऑफ कोर्स, क्योंकि वो सेल्फ मेड है, मैं सेल्फ मेड हूं, धर्मेंद्र सेल्फ मेड रहे, अमिताभ बच्चन सेल्फ मेड रहे। यहाँ लोग किसी के गॉडफादर, किसी के साथ आने की जरूरत नहीं पड़ी हमारे। आई वुड से कंगना के बारे में मैंने 2019 में, जैसा आपने कहा कि मैंने तारीफ की थी अप्रैल में, मैं फिर 2020 में जुलाई में उसकी बहुत तारीफ कर रहा हूं। और मैं समझता हूं कि कंगना जो है, उसने उन पंक्तियों को चरितार्थ किया है, when going gets tough, the tough get going। उसने अपने आप को आगे बढ़ाया है इन मुसीबतों के बीच में से झेलते हुए और खेलते हुए। आज ज्यादातर लोग को मैं देखता हूं, वो कंगना से इसलिए कंगना के खिलाफ बोलते हैं या कंगना की खिलाफत करते हैं, क्योंकि उनको उनके अंदर उनको कंगना से बहुत जेलसी होती है कि हमारे रहमो करम के बगैर, हमारी मर्जी के बगैर, हमारे ग्रुप में शामिल हुए बगैर, हमारे आशीर्वाद के बगैर, हमारे पुश के बगैर ये लड़की इतना आगे कैसे निकल गई। इस बात की उनको चिढ़ होती है, जलन होती है, कॉम्प्लेक्स होता है, रादर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। जैसे कंगना ने मुझे बोला कि करण जौहर ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक फोरम में कहा कि अगर इफ शी डजंट लाइक इट, वो निकल जाए, लेट हर लीव बॉलीवुड। मेरा ये कहना है कि करण जौहर कौन को होते हैं ये कहने के लिए कि कंगना शुड लीव बॉलीवुड? और ये भी कहा वुमन कार्ड प्ले करती है, विक्टिम कार्ड प्ले करती है। क्या वुमन कार्ड, क्या विक्टिम कार्ड? और जो लोग अपने आप को फेमिनिस्ट कहते हैं बॉलीवुड में, किसी ने सवाल नहीं उठाया उस पर। यानी कि एक तरह से हाउंडिंग, अब हाउंडिंग को हिंदी में क्या कहा जाए, सब लोग मिलके एक सब लोग मिलके, इफ यू हाउंड वन पर्सन, एक व्यक्ति के खिलाफ आप पीछे पड़ जाए, या तो इनको साइडलाइन करेंगे या बाहर कराएंगे, या इनको डिप्रेशन में डालेंगे, फिर कहेंगे ये परवीन बाबी जैसी इनकी एंड होगी। मतलब एक प्लान्ड कंस्पिरेसी लगती है मुझे। आपने जो अपने जमाने के बारे में कहा वो ऐसा नहीं था, आपने कैंप्स के बारे में बोला, इस हद तक तो नहीं था ना, ये तो बहुत प्लान्ड लगता है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे जमाने में ये कॉफी विद अर्जुन भी नहीं था। हमारे जमाने में ये जो कॉफी विद अर्जुन चलता है, इस तरह के तरह तरह प्लान इवेंट्स होते हैं, ये भी नहीं था। और यहीं से बहुत सारी बातें निकलती हैं और खड़ी होती हैं। अभी एक बात कहना चाहूंगा कि जिनका भी जिक्र हो रहा है, सब तो हैं अपने ही परिवार के, इन द सेंस हमारी सोसाइटी के हैं, लेकिन किसी की जागीर नहीं है फिल्म इंडस्ट्री। बहुत खूब। किसी के पिताजी की जागीर नहीं है कि आप कह देंगे इसको नहीं रहना फिल्म इंडस्ट्री। आप हैं कौन? आप खुद कैसे आए हैं? आपने खुद क्या किया जीवन में? एक दो फिल्में अगर आपकी अच्छी चल गई हैं, उसके बाद की फिल्में कहाँ है? बाद में फिल्में बनाने का साहस क्यों नहीं हो रहा है? हौसला क्यों नहीं हो रहा है? जब तक स्टारडम चलता है, तब तक तो ग्रुप का डंडा, पापा जी तुझसे छा गए, पापा जी तुझसे आ गए, कमाल उनकी पोप हो, तुझसे पोप हो। लेकिन जब उसकी फिल्म नहीं चलती, और धीरे धीरे वो लोग पीछा छोड़ देते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी मैं देख रहा था कि ग्रुप का शिकार हुआ, जो लोगों ने बताया मुझको, और जिन लोगों ने उनके साथ ज्यादती की, वायदा खिलाफी की, प्रॉमिस किया और प्रॉमिस नहीं निभाया, वायदा निभा, मैं समझता हूं उसके इस जिंदगी के बाद जो कुछ हुआ, मैं समझता हूं उसके लिए बहुत हद तक वो लोग जिम्मेदार हैं।